Hello students, welcome to your social science class 9th. As we have completed our second chapter of geography, physical features of India. Today I am discussing NCERT solution of this chapter. NCERT solution chapter 2. We will discuss question answers of this chapter. First question is a multiple choice question. A land mass bounded by sea on three-sided is referred to as option A coast, option B peninsula, option C island, option D none of the above. The right answer is peninsula. Second question. Mountain ranges in the eastern part of India forming its boundary with Myanmar are collectively called option A Himachal, option B Purvanchal, option C Uttarakhand and option D none of the above. The right answer is Purvanchal. Now our next question is the western coastal strip south of Goa is referred to as option A Coromandel, option B Kannad, option C Konkan, option D Northern Sirkar. The right answer is Kannad. Next question. The highest peak in the eastern Ghats is option A Anaimudi, option B Mahendragiri, option C Kanchenjunga, option D Khasi. The right answer is option A Anaimudi. Now question answers. Our first question is what are tectonic plates? टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं? According to the theory of plate tectonics, the crust of our earth is made up of 7 major and some minor plates. The crust of the earth is not in the form of a continuous plate, rather in the form of broken pieces. कितने pieces हैं? 7 major and 18 minor plates. These pieces of earth's crust are called टेक्टोनिक प्लेट. ये अर्थ के जो पीसीज हैं इनको टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है. सेकंड क्वेश्चन. विच कंटिनेंट्स ऑफ टुडे वर पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड? आंसर इज साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया वर पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. Next question is what is Bhabbar? After descending from the mountains, the river deposit pebbles in a narrow belt. Rivers माउंटेन से नीचे उतरने के बाद माउंटेन्स की एक नैरो सी बेल्ट में पेबल्स डिपॉजिट कर देते हैं, स्टोन्स डिपॉजिट कर देते हैं. द विड्थ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट की जो विड्थ है वो 8 to 16 किलोमीटर है एंड इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक हिल्स. और ये शिवालिक की जो हिल्स हैं उनके पैरेलल मूव करती है. दिस रीजन इज़ नोन एज भाबर. इस एरिया को भाबर कहा जाता है. ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस रीजन. इस एरिया में जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं. Name the 3 major divisions of Himalayan from north to south. नॉर्थ से साउथ की हिमालय की 3 डिवीजन्स के बारे में बताओ. तो नॉर्थ से साउथ में हिमालय को 3 माउंटेन रेंजेस में डिवाइड किया गया है. 3 मेजर डिवीजन्स ऑफ द हिमालयाज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आर द ग्रेट हिमालय, जिसको इनर हिमालय या हिमाद्री भी कहते हैं, द लेसर हिमालय और हिमाचल, एंड द लास्ट है आउटर हिमालय
Shivaliks. Our fifth question is, which plateau lies between the Aravalli and the Vindhya range? अरावली और विंध्या रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है? The answer is the Malwa Plateau lies between the Aravalli and the Vindhya range. नेम द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन. इंडिया के कौन से आइलैंड ग्रुप कोरल से बने हैं? आंसर है लक्षद्वीप आइलैंड्स. आवर सेवंथ क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन. हमने डिफरेंस करना है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग टेक्टोनिक प्लेट्स. Answer is the converging tectonic plates move towards each other while diverging plates move away from each other. Converging plates एक दूसरे के समीप आती हैं, नज़दीक आती हैं, जबकि जो डाइवर्जिंग प्लेट्स होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाती हैं. डिस्टिंग्विश बिटवीन भंगर एंड खदर. भंगर और खदर जो नॉर्थन प्लेन्स की फीचर्स हैं, इनमें डिफरेंस करना है हमें. भंगर इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स. भंगर नॉर्थन प्लेन्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है एंड इज़ फॉर्म्ड बाय ओल्डेस्ट एलुवियम. ये ओल्डेस्ट पुरानी एलुवियल सॉइल से बना है. ऑन द अदर हैंड खदर इज़ द यंगर डिपॉजिट ऑफ एलुमिनियम. जबकि खदर है वो यंगर डिपॉजिट है एलुमिनियम का. ये बाद में बने हैं, न्यूली फॉर्म्ड प्लेन्स हैं. Distinguish between Western Ghats and Eastern Ghats. Western Ghats, they lie along the Arabian Sea. वेस्ट की तरफ अरेबियन सी के अलोंग ये मूव होते हैं वेस्टर्न घाट्स. और ईस्टर्न घाट दे लाई अलोंग द बे ऑफ बंगाल. ईस्टर्न घाट बे ऑफ बंगाल के साथ मूव करते हैं. वेस्टर्न घाट्स की जो एवरेज हाइट है वो 900 to 1600 मीटर्स तक है और ईस्टर्न घाट की हाइट एवरेज हाइट 600 मीटर्स तक है. वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यूस और ईस्टर्न घाट्स आर इंटरस्प्रेड बाय रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड. हिमालयाज कैसे बने थे? The Indian peninsula drifted towards the north and finally collided with the much larger Eurasian plate. इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट था वो नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट हुआ और बहुत बड़ी यूरेशियन प्लेट से जाके कोलाइड हो गया, मिल गया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिशन, इस कोलिशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द geosyncline known as teeth got folded and formed the mountain system of West Asia and Himalaya. जो एक टीथ सी था, सेडिमेंट्री रॉक्स थी. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोलिशन सेडिमेंट्री रॉक्स थी जो किस में मिल गई? टीथ सी में मिल गई. जियोस्क्लाइन भी कहते हैं इसको. गोट फोल्डेड, वो फोल्ड हो गई और फॉर्म द माउंटेन सिस्टम ऑफ वेस्ट एशिया. और इन्होंने वेस्ट एशिया और हिमालय का माउंटेन सिस्टम फॉर्म किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया कंट्रास्ट द रिलीफ्स ऑफ द हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया. द लैंडमास ऑफ इंडिया कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन. इंडिया के लैंडमास को 6 फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड किया गया है. द हिमालयन माउंटेन्स, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. अब कंपैरिजन करना है नॉर्थन प्लेन्स का हिमालयन रीजन से. द हिमालयन रीजन इज़ रग्ड एंड शोज ग्रेट वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड. हिमालयन रीजन है वो रग्ड सरफेस है और ये वेरिएशन शो करता है एल्टीट्यूड मीन्स हाइट में. नॉर्थन प्लेन्स ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो इज़ मोर और लेस लेवल एंड हैज़ लिस्ट वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एल्टीट्यूड. नॉर्थन प्लेन्स की हाइट में वेरिएशंस बहुत कम है. द हिमालयन रीजन इज़ फॉर्म्ड बाय रॉक्स. हिमालयन रीजन है वो रॉक से बना है. एंड
अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स और अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट से मिलके बना है, जबकि जो नॉर्थन प्लेन्स हैं वो एलुवियल डिपॉजिट से बने हैं। लास्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट इज द इंडियन डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट lies towards the western margins of अरावली हिल। इंडियन डेजर्ट्स अरावली हिल के वेस्टर्न मार्जिन्स पर हैं। दिस रीजन गेट्स स्केंटी रेनफॉल विच इज़ लेस देन 150 मिलीमीटर इन ए ईयर। इस एरिया में बहुत कम रेनफॉल होती है जो पर ईयर 150 मिलीमीटर से कम होती है। हैंस दे क्लाइमेट इज़ एरिड। इसी कारण से वहाँ का जो डेजर्ट एरिया का जो क्लाइमेट है वो हॉट होता है, गर्म होता है और ड्राई होता है। वेजिटेशन इज़ स्कैंटी और वहाँ पे वेजिटेशन भी कम होती है। लूनी इज़ द ओनली रिवर बट सम स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग रेनी सीजन। इंडियन डेजर्ट की ओनली रिवर है लूनी रिवर और कई बार रेनी सीजन में कुछ स्ट्रीम्स भी दिखाई देती हैं। क्रिसेंट शेप ड्यून्स या ब्रांचेस अबाउंड इन दिस एरिया। इस एरिया में क्रिसेंट की शेप की, ट्रायंगुलर शेप की ड्यून्स, सैंड ड्यून्स दिखाई देती हैं, रेत की पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स लाई टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। सेंट्रल हाईलैंड्स नर्मदा रिवर के नॉर्थ की तरफ हैं। इट कवर्स द मेजर पोर्शन ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये मालवा प्लेट्यू के मेजर पोर्शन को कवर करते हैं। द रिवर्स इन दिस रीजन फ्लो फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। इस एरिया की जो रिवर्स हैं वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं। विच इंडिकेट्स द स्लोप ऑफ दिस रीजन। जिन कारण से इन एरियाज़ का स्लोप बना है, ढलान बनी है। इट इज़ वाइडर इन द वेस्ट एंड नैरोअर इन द ईस्ट। ये वेस्ट में वाइड हैं और ईस्ट में नैरो हैं। बुंदेलखंड एंड बघेलखंड मार्क द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ बुंदेलखंड और बघेलखंड प्लेट्यू हैं। द प्लेट्यू फर्दर एक्सटेंड्स टुवर्ड्स ईस्टवर्ड इनटू द छोटा नागपुर प्लेट्यू। इस प्लेट्यू के ईस्ट की तरफ छोटा नागपुर प्लेट्यू है। द लास्ट वन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 2 आइलैंड ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है द लक्षद्वीप आइलैंड। द लक्षद्वीप आइलैंड्स आर इन अरेबियन सी। द लक्षद्वीप आइलैंड्स अरेबियन सी में है। इट्स एरिया इज़ 32 स्क्वायर किलोमीटर। इसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर है। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड क्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप इज़ एट कावरती आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड का हेड क्वार्टर कावरती आइलैंड है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज़ रिच इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इन आइलैंड ग्रुप्स में बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और हमने पढ़ा था कि पिटी आइलैंड इज़ बर्ड सेंचुरी। पिटी आइलैंड है जो लक्षद्वीप में वो बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर बिगर इन साइज़। ये बड़े होते हैं साइज़ में एंड हैज़ मोर नंबर ऑफ आइलैंड्स और इसमें बहुत सारे आइलैंड्स हैं। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। इन आइलैंड ग्रुप्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड किया जाता है। द अंडमान इज़ द नॉर्थ। इसके नॉर्थ में अंडमान है और साउथ में निकोबार आइलैंड्स हैं। दीज आइलैंड्स टू हैव रिच बायोडाइवर्सिटी। इन आइलैंड्स पे भी बायोडाइवर्सिटी बहुत सारी पाई जाती है। थैंक यू। These were NCERT questions of your book. In next video, I will share some other extra important questions. Thank you. Thank you so much.